شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ شامل خدمت میں تمام بھائی بہنیں اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ دوستو، آج جو ہماری کلاس ہے وہ ہے خدا کا فضل عام۔ کیونکہ اگر ہم خدا کے فضل کو نہ سمجھیں تو کبھی بھی ہم خدا تک رسائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک فضل عام ہے اور ایک فضل خاص ہے۔ فضل عام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سم کو چن لیا جو نوح کا بیٹا ہے، اور نوح صدق سالم کا بادشاہ بھی ہے۔ صدق کا مطلب ہوتا ہے سچائی، اور سالم جو ہے وہ یروشلم کو کہا گیا ہے، تو وہ یروشلم کا پہلا بادشاہ تھا، اور اس کے پاس خدا نے اپنے طریقے سے، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہمارے پہلے سیشن میں یہ باتیں ہو چکی ہیں، اور آج بھی اگر یہ سیشن کمپلیٹ ہو گیا تو ٹھیک، ادروائز ہم دوسرے میں جائیں گے، کہ نمرود نے تارا کو، جو سم کی نسل کا تھا، اسے اپنے پاس چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا، اور چیف آف آرمی سٹاف جس کو تعینات کیا جاتا تھا، اس کی وفاداری کو نمرود اس طرح سے چیک کرتا کہ وہ اپنا بیٹا، جو نمرود کے گھر کا خدا تھا جسے بال کہا جاتا ہے، وہ میں نے پہلے بتایا ہے، آپ کو یاد ہوگا، آپ اپنی نوٹ بک میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایل گاڈ کے ساتھ اس نے بے لگا دیا تو وہ بال بن گیا۔ بے لگانے سے بنتا ہے کہ وہ اس کے گھر کا خدا ہے، بیت ایل۔ تو اس نے بیت ایل کو، اس کے بیت پورا نہیں کیا، صرف اس نے بے لگایا، یعنی کہ بیت، اور آگے ایل لگا کے تو اس کو بال بنا لیا کہ میرے گھر کا، میرا اپنا یہ خدا ہے جس کا نام بال ہے۔ کیونکہ اس وقت یہ رواج تھا، مصر میں اخناتون تھا، اور مدیان میں ایک الگ تھا۔ میں چاہتا نہیں ہوں کہ اب ان کے نام آپ کے ذہن میں ڈالوں، تو صرف جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے وہی آپ کے ساتھ آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ تو سم کی اولاد سے تارا ہوا، اور تارا کی اولاد سے جب ابراہیم ہوا تو نمرود نے چاہا کہ اس کو میرے حضور وفاداری کے ثبوت کے طور پر پیش کر، آگ میں ڈال دے، بال کے سامنے اس کی قربانی دے دے۔ لیکن تارا نے اپنے بیٹے کو بچا لیا، چھپا لیا، اور کچھ دیر تالمود کے مطابق اور یہودی روایت کے مطابق اس کو چھپائے رکھا، اور بعد میں نمرود کو پتہ چل گیا کہ تارا کا بیٹا ہے جس کو اس نے چھپایا ہوا ہے، تو اس نے تارا کو بلایا، اور تارا نمرود کے پاس جانے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو سم کے پاس پہنچا دیا، اور سم نے پھر ابراہیم کی رہنمائی کی، تربیت کی، سنبھالا، اس کو ایمان سکھایا، اس کو خدا کے بارے میں سکھایا، خدا کی وفاداریوں کے بارے میں سکھایا، اور یوں ابراہیم اتنا زیادہ خدا میں مضبوط ہو گیا کہ خدا نے ابراہیم کو ایک لڑی کے طور پر، ایک ڈوری کے طور پر یوز کیا، استعمال کیا، کہ ابراہیم کے ذریعہ سے دوسرے قبیلے بھی خدا کی قربت میں آ جائیں، سچے خدا کو مانیں،
जो हकीकी खुदा है, जो कादर मुतलक खुदा है, जो इंसानों के बनाए हुए खुदा हैं, उनसे इब्राहिम के जरिया से लोग रिहा हो जाएं। और इब्राहिम ने भी नमरूद के बुतों को तोड़ा और उसके बुतों को तोड़कर उसने साबित किया कि ये झूठे हैं। फिर ऐसा मौका आ गया, हालात ऐसे हो गए, काल पड़ गया कि इब्राहिम को मिस्र जाना पड़ा। और अगर आप बाइबल स्टडी करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये हाम की नस्ल है। और हाम की नस्ल को कई दफ़ा हम हादसाती तौर पर बड़ी तकरीब देखते हैं, बड़ी गड़बड़ देखते हैं कि ये क्या हुआ, लेकिन खुदा की प्लानिंग इंसानी तरीके से नहीं होती। खुदा का मंसूबा बिल्कुल फ़र्क है। जैसे कि सारा वहाँ पे गई, वहाँ पर वो रही और उस वहाँ के बादशाह ने उसे अपनी बीवी बनाना चाहा। खुदा ने बीच में आकर उसको कहा कि खबरदार, ये एक नबी की बीवी है, इसको ना छेड़ना। और इसी बात पर अबीमलक ने अपनी एक बेटी को, उसकी बेटी थी ये जो हाजरा थी, उसने अपनी बेटी उधर दे दी, जिसका मतलब क्या हुआ कि हाजरा के आने के सबब से अब हाम की नस्ल, हाम की औलाद भी सिम की औलाद के साथ डोरी में बांधी जा रही है। उसके बाद जो सारा है वो तो सिम की औलाद में से थी, तो सारा हाजरा को कबूल नहीं कर रही थी। उसने उसको घर से निकाल देने को कहा और निकाला भी, लेकिन खुदा ने उसे कहा कि नहीं, तू दोबारा जा अपनी बीवी के पास। यानी कि खुदा उसको जोड़ना चाहता है कि तुम दोनों इकट्ठी रहो, लेकिन ये औरत की फितरत है, उसने नहीं चाहा कि वो उसके घर में रहे, उसने फिर उसको निकाल दिया। आखिरकार खुदा ने कहा कि इब्राहिम को, जो तेरी बीवी कहती है तू उसे मान, इसको निकाल दे। जब निकाल दिया, फिर ये सिलसिला ऐसा हो गया कि इसहाक की कुर्बानी हुई। इब्राहिम के अंदर ये बात जो नमरूद की तरफ से डाली गई, उसको ख्वाब में आ गया कि मैं अपने बेटे की कुर्बानी दूं। हालांकि खुदा तो बेटों की कुर्बानियां नहीं देता। खुदा ने उसको ये साबित किया कि मैं अपने कुर्बानी का इंतज़ाम करता हूं, मेरा बेटा जो है, मेरा महबूब जो है, मेरा जो वजूद है, मेरी जो पहचान है, मैं उसकी कुर्बानी दूंगा। उसका वजूद मूसा को हुरब पर दिखाया गया और उसका कुर्बानी देने का बर्रा मोरिया पहाड़ पर दिखाया गया और उसका वादा अदन में किया गया कि मैं ही तुझे रहाई दूंगा, औरत की नस्ल से रहाई होगी। तो औरत की नस्ल से, मरियम के बातन से रहाई का दरवाजा खुला, जो पहले फजले आम है। और उस फजले आम में आप नोट करते जाएं साथ साथ कि फजले आम में हाजरा को ले लिया ताकि हाम की नस्ल जुड़ जाए, और बाद में जब इसहाक की कुर्बानी की बात आई तो किसी ने बता दिया सारा को कि तेरा आदमी तेरे बेटे को कुर्बान करने के लिए गया है। तो ये लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं सिर्फ मोटी सी बात बताना चाहता हूं कि सारा मर गई। यही वहम लेके, इसी डर में उसको हार्ट अटैक हो गया और वो मर गई। अब मैदान एक तरफ से खाली हो गया। अब खुदा के मंसूबे क्या हैं? क्योंकि खुदा चाहता था कि इब्राहिम की नस्ल को बढ़ाए, और जो सारा थी वो इब्राहिम को किसी तरफ हिलने नहीं दे रही थी। और एक ऐसे खुदा ने ऐसा रास्ता बना दिया कि वो सारा तो हो गई फारग। अब हाजरा को घर से निकाल दिया है और हाजरा तो अलग रह रही है अपने बेटे इस्माइल के साथ अरबों में। अब अरबों में ही एक और खुदा ने इब्राहिम को बीवी दी जिसका नाम था कतूरा, जिसकी नस्ल कतर के लोग हैं, और उसी के नाम पे ही कतर बना है। और जो उसके बेटे का नाम था उसको कहा जाता था मदियान, क्योंकि उस कतूरा का बड़ा बेटा मदियान था। तो अब ये देखिए कि खुदा ने उसको भी, अरबों को भी साथ मिला लिया।
और अरबों को साथ मिलाकर उधर हाम की नस्ल को ले लिया, इधर अरबों को साथ ले लिया, और अरबों की जो नस्ल है वो भी इब्राहिम के घर के बन गए। अब इस्माइल की औलाद तो ऑलरेडी इब्राहिम की औलाद है। अब जब ये एक खानदान बन गया, खुदा का फजल आम अब दुनिया पे होने को है, और खुदा ने कहा कि तेरी नस्ल से दुनिया बरकत पाएगी, कौमें बरकत पाएंगी। जब वक्त गुजरता गया तो उसी में से फिर उसके बेटे इसहाक से यकूब पैदा हुआ, और यकूब से आगे यहूदा हुआ, और यहूदा के कबीले में से दाऊद बादशाह हुआ, और दाऊद बादशाह की नस्ल से मसीह खुदावंद पैदा हुआ। अब मसीह खुदावंद के पैदा होने तक बहुत सारे नबी हुए, यहूदियों से बाहर भी हुए, लेकिन यहूदियों ने फिर ये किया कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने नस्ल को, अपने लोगों को ही फोकस करते रहे, जबकि खुदा का वादा ये था कि इब्राहिम की नस्ल से बरकत होगी, और वो बरकत खुदा ने देने के लिए चुन लिया इब्राहिम को। उसकी नस्ल कतूरा की औलाद भी है, और उसकी नस्ल हाजरा की औलाद भी है, और उसकी नस्ल इसहाक की औलाद भी है। ये फजले आम है। फजले आम में ये जुड़ गए, ये परोए गए एक लड़ी में। अब फजले खास में जो कहा गया वो है मसीह खुदावंद। अब आप देखिए कि मसीह खुदावंद ने भी ना सिर्फ यहूदियों को फोकस किया शुरू में, क्योंकि वहां पे वो पैदा हुआ, वहां पे जवान हुआ, वहां पर उसकी कुर्बानी हुई, लेकिन उस कुर्बानी के जो दरिया हैं, जो चश्मे हैं, वो पूरी दुनिया में फूट निकले। और उसने अपने शागिर्दों को कहा, ये जो 12 चश्मे थे, आप जगह जगह बाइबल में 12 चश्मे देखेंगे। 12 चश्मों का मतलब है पूरी कौम, पूरी नस्ल, पूरी दुनिया। जब यरूशलेम की बात है तो उसके भी 12 पत्थर हैं, 12 बुनियादें हैं। जब बनी इस्राएल के कहन के सीना बंद पे जो पत्थर लगाए गए वो भी 12 थे। तो ये जो 12 का अदद आया है, तो उसने 12 शागिर्द चुने, और ये 12 शागिर्द पूरी दुनिया के चश्मे बन गए, और उन्होंने फजले खास की मनादी की कि आप जिस कौम के भी हो, जिस कबीले के भी हो, आपको फजले आम में बरकत बड़ी मिल रही है और मिलेगी, क्योंकि आप नस्ल इब्राहिमी हो। किसी जगह पे तेल की फरावानी है, किसी जगह पे सोने की बतात है, किसी जगह पे किसी तरह की बतात है, तो उसने इब्राहिम को बड़ी बरकत दी। बाज दफा लोग समझते हैं कि बरकत सिर्फ यहूदियों में है और किसी कौम के पास नहीं। हर कौम के पास जो इब्राहिम की नस्ल के साथ जुड़े हुए हैं, जिन पर इब्राहिम की मोहर है, जिन पर इब्राहिम का निशान है, उनको बरकत है। ये जो इस वक्त इंडिया में लोग हैं, बेशक वो बुतों को मान रहे हैं, लेकिन वो सिम की औलाद में से बिगड़े हुए लोग हैं। उनमें से भी बहुत सारे हैं जो नस्ल इब्राहिमी हैं, बनी इसराइल हैं, जो 10 कबीले तितर बितर हो गए दुनिया में। उनमें बहुत सारे हैं जो इंडिया में हैं, अफगानिस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं, आजरबाईजान में हैं। तो मैं अगर ये कबीले किसी दूसरे टाइम पे आपको बताऊंगा कि ये 10 के 10 कबीले इस वक्त दुनिया में किस किस जगह पे हैं और कहां कहां पर इनकी हुकूमतें हैं। किसी जगह पर ये हुकूमत कर रहे हैं, किसी जगह पे हुकूमत करने के लिए रस्से तोड़ रहे हैं, बंधन तोड़ रहे हैं, और किसी जगह पे ये नीचे लग के काम कर रहे हैं मजदूरी के तौर पे, और ये गुलामी में हैं, लेकिन हैं इब्राहिम की नस्ल। अब फजले खास की बात है कि जब ये 12 चश्मे, 12 शागिर्द पूरी दुनिया में खिदमत कर रहे हैं, अब उनके चश्मों से छोटी छोटी आगे नालियां बन गई,
चश्मे बह निकले। जो मसीह खुदावंद ने कहा कि चश्मे बह निकलेंगे, तेरे अंदर से चश्मे बह निकलेंगे, और वो फिर चश्मे निकल पड़े और वो डिनोमिनेशन बन गए, वो आगे कबीले बन गए, वो जमातें बन गई, और उन्होंने लोगों को बरकत देने के लिए स्कूल खोले, हॉस्पिटल्स बनाए और कॉलोनियाँ बनाई, चर्चेज बनाए, मुल्क तैयार किए, और वही लोग किसी जगह पे इंग्लैंड की सूरत में दुनिया पर हुकूमत की, दुनिया को फैज़ दे रहे हैं, किसी जगह पे वो अमेरिका के सूरत में दुनिया को संभाल रहे हैं। उनको उनका डोमिनेट करने को ना देखें आप ये देखें कि हर जगह पर इब्राहिम की नस्ल और जो मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, भले वो मजबूत हैं या कम हैं, उनके ऊपर स्टैंप यस्सु की है। वो दुनिया को फैज़ दे रहे हैं, दुनिया को फायदा दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, बिजली की तारें दे रहे हैं, कैमरे दे रहे हैं, जहाज दे रहे हैं, रॉकेट दे रहे हैं। कई कई नई इजाद सिर्फ वही लोग कर रहे हैं। आम जो बरकत है वो सबके पास है जो इब्राहिम की नस्ल के हैं, और जो इब्राहिम की नस्ल से नहीं, वो बरकत ले रहे हैं नस्ल इब्राहिमी के साथ मिलकर। और जो फजल खास है वो मसीह के जरिया से है, और मसीह के जरिया से खुदा का मंसूबा पूरा हो रहा है। खुदा चाहता है कि सब एक रहें, एक दूसरे के साथ परोए रहें। जैसे इब्राहिम के टाइम पे हाम की नस्ल को परो लिया, अरबों को परो लिया, और फिर मसीह में हर एक को परोया जा रहा है कि आसमान की बादशाही की लड़ी में आ जाए। नबी, पैगंबर, रसूल बाहर से भी हुए, उनका किरदार क्या है? नबी, पैगंबर, रसूल का काम है तालीम देना, रहनुमाई देना, लोगों को खुदा के बारे में बताना, लोगों को दुनिया के बारे में बताना, और वो बताते रहे हैं। हम उनसे डिनाई नहीं कर सकते। कुछ हैं जो मसीह के बारे में, आप इंडिया की बुक्स देख लें, गीता देख लें, रवायन देख लें, ग्रंथ देख लें, कुरान मजीद को देख लें, आप इन सब किताबों को देखें, इस्लाम में भी, तो सब मसीह के बारे में बता रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो वो हैं वो नहीं है, वो हैं, हम उनसे डिनाई नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं कि वो नहीं है इंडिया वाले, या वो नहीं है जो इस्लाम वाले हैं, वो गलत फहमी में है। वो भी मसीह के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बताना जरूरी नहीं। मसीह को अपना नजात दहिंदा, अपना राह जब तक कोई नहीं मानता, वो फजले खास में नहीं आ सकता। फजले आम में तो वो हैं, लेकिन फजले खास के लिए यस्सु को अपना नजात दहिंदा मानना, यस्सु को खुदा का महबूब मानना, यस्सु को खुदा का मंसूबा मानना, यस्सु को खुदा का रसूल मानना, यस्सु को खुदा का खादम मानना, यस्सु को जो दुनिया का नूर मानना, ये लाजमी है। जब तक कोई नहीं मानता, वो उस खास में शामिल नहीं हो सकता। आम में तो वो हैं। इसलिए ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ हमारी बत्ती जल रही है, दूसरों की बत्तियां नहीं, उनके दिया भी बत्ती है, मोमबत्ती भी एक रोशनी है, दिया भी एक रोशनी है, एक चिंगारी भी एक रोशनी है। आप उसकी रोशनी से डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जो हाई लाइट है, जिसमें से सब कुछ दिखाई देता है, जो ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाती है, जो जहाज़ों का रास्ता दिखाने के लिए है, जो एयरलाइनों को सिग्नल देती हैं, वो तमाम की तमाम रोशनियां जो हैं वो बड़ी मंजिल की हैं। लेकिन दिए, बत्ती, मोमबत्ती, छोटी छोटी चिंगारियां, ये भी रोशनी है। इवन जुगनू भी रोशनी है। लेकिन आप किस तरह से किसी को फायदा देते हैं, रहनुमाई देते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए खुदा के मंसूबे को समझना बहुत जरूरी है। अपने ज़हन को खुला रखें और अपनी आंखों को खुला रखें, अपने दिल को खुला